Thank you so much.
Okay, so good evening, everyone, and once again, I welcome you all for this today's talk show. What we are having. Uh, Before we start, let me just I would really want to appreciate you all that you all have spared this Sunday evening and you have taken that effort to come and join and have this uh, open session, I would say, because many of the people who have joined us, they are in touch with us. They have been telling us, suggesting topics that they would want to hear from various speakers. So, yeah, very much thank you for such an overwhelming response which you guys are giving towards this talk show. So, once again, for you all who are new and joining us today, let me introduce myself. I am Jinal Punamya and I'm the program manager for MICE. MICE stands for Medical Innovation, Creativity and Entrepreneurship Lab. Uh, as I've already mentioned, that many of you know about us. Who are we? What do we do? So, for those who don't know, let me just give you a brief about us. So, MICE Labs is basically, I would say, a medical innovation tinkering lab, which is situated in the prestigious campus of Grand Government Medical College and Sir J.J. Group of Hospital, which is there in Mumbai, I would say. This lab is basically, I would say, a funded lab by an angel investor called as Dr. Aniruddha Malpani and Dr. Anjali Malpani. They both are IVF specialists by profession, and also that is in the collaboration with Government of Maharashtra. So what do we do? Basically, we just encourage students and young startups who are there in medical device innovation, and along with it we organize various workshops, I would say sessions, talk shows, hackathon, and so on, in order to just promote and create an awareness about medical device and the innovations which are happening. So that's a small brief about us. So now let me just introduce you all. Just a second, few people are yet joining, so let me give them entry. Yeah. So now let me just introduce to you the speaker of the day, that is Dr. Vishal Jha. Talking about Dr. Vishal, I would say he is currently pursuing his pediatric residency in Bai Jirabai Wadia Hospital, Mumbai. Along with being a hardworking and dedicated doctor, he is a founder of imedscholar.com and has previously worked with various organizations and been a head of business for YCW21 company. He has also been an advisor and mentor for many other startups, namely Maro, MedPlasm, BW, Sketchnote, Aerogram, CurePlexus, Mass, our own Mice Labs, and many others. He is also deeply passionate about social healthcare and runs CSW, that is Cancer Foundation, that runs three cancer centers, and it is operating in 7 different cities. CSF have adopted healthcare services for 75 tribal villages in Palghar, enabling end-to-end healthcare. He was also invited by Tribal Ministry of Government of India for tribal health policy making in Delhi. So once again, I would really want to congratulate firstly Dr. Vishal for such noble work he is doing, and also welcome to this talk show. We all are really eager to know your journey and what all you have been doing in your life. So welcome, and over to you, Dr. Vishal. Thank you so much, Gina. Like, my slab is very close to my heart because, like, the time when I came to know about it, it was always like I wish something like this was there for medical students, and this is something that I wanted to do for medical students, but I was too lazy to do it, so you all did it finally. And I'm really happy. Like, I have a close connection with all the Krishna, which he keeps on texting me. Now Zina is also there. She has also become a good friend since last 2 days that we have been talking. Anyway, I'll start about the journey. Now, I'll drop some disclaimers. First thing, if you see sisters and brothers around and mama maushis around, please don't mind because I'm in a hospital. I'm in my ward. So I got a 1 hour slot. Like they gave me a 1 hour slot so that I can take this session. थोड़ा बहुत disturbance होगा तो please don't mind. Anyway, since time is left, I'll just start. So
basically I thought that I'll speak about my journey, and then I started thinking, where did it actually start? So normally I always start from like 10th standard when I had to take a decision if I want to become a doctor or no. Then like today morning I realized that it actually started long back. Like I remember when I was in school, like primary, okay. तो उस वक्त वो सब बहुत सारे ये चलते स्टिकर्स वगैरह चलते थे स्पाइडरमैन और वो सब के. I used to get all those stickers in bulk at 49 to 99 shop. It is in Borivali in case anyone of you is from Borivali. They used to give those stickers at bulk, and then I used to give because it was in bulk and you had to buy the whole book. Many mothers did not allow their children to have it. So I got those books and I sold that one sticker for 1 rupees, or if it's a big sticker for 2 rupees or 5 rupees. So that way, the book that I got for say 50 rupees, I made around. I remember that time like it was around 600 to 650 rupees per book. So this was, I guess, when I was in my third or fourth standard. Then there was this magazine. I don't know if anyone of you have read magazine called Champak. So in some of the years, they started giving a CD along with that book. Okay, what I used to do is I used to copy that CD and get all the games with myself, and then I used to buy those CDs at 8 rupees and create replicas of that CD. So normally you have to spend 20 rupees to get that book. I would give it to 12 rupees, 14 rupees, and get 6 rupees per CD. Not a very profitable deal, but margin wise, it is good, I guess. So that was how my childhood was like. So I remember they used to take us to that Pagaji ka field trip, and while I was there, no, everybody was like, "अरे यार इतना सारा information है, तो हम लोग को सीडी में दे देता तो फिर आई स्टार्टेड मेकिंग कोपियस नोट्स आई वेंट बैक होम आई जस्ट डन पीपीटी so I created a ppt presentation and then I started selling that too. So that is when my love for technology and entrepreneurship began, I guess. And that was all till my school times. Then 10th came. Okay, so my dad is a doctor, my mom is a vice principal, like she just retired as a vice principal, and my brother was also a doctor then, like he was studying medical, he was doing MBBS. So they all expected that I would become a MBBS doctor too, but I had no intentions to because like I always had that issue that how many patients will I be able to treat in a day. I did not know the concept of scale and impact then, I guess. But my question was how many patients would I be able to treat in a day? So how big can I become that way? So when they took me to one of the professors and somehow he convinced me that you can do all those things in medical too, and I was foolish enough to agree to him. And then I ended up taking bio, but then I loved it. Like 11th, 12th, I loved it. It was like bio was easy, so you can score easily, you can still have fun and score good marks. Then I got 681 rank, and fortunately, I got Government Medical College Solapur. When I entered there, no, the environment for me was slightly gloomy. I assumed that it would be like अच्छा medical science and government college and all. We expected a lot while we were studying कि अच्छा government college में ऐसा होगा वैसे होगा. It was not that exciting at all. So then I thought कि अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या करना है वगैरह. So फिर and you know like I had a big problem with my seniors, so they used to not like me for several reasons, rightly so. And that's why they were like keep on threatening me that we won't give you the important markings and we won't give you the answers and all those things. So I thought rather I'll take it from internet. And this was pre-Geo era. Okay, this was like I entered MBBS in 2014. I'm from 2014 batch. तो तब जियो आया नहीं था. तो I guess it came in 2016 end or something. तो फिर इंटरनेट पे देखा कुछ मिल नहीं रहा था. मैं सोचा कि अच्छा खुद बनाते हैं, खुद करते हैं. मैं वैसे टॉपर लोग का वो एमएचएस के टॉपर्स लोग को लाऊंगा उन लोग का ये. तो फिर वैसे चालू किया, बट अपने को वेबसाइट वगैरह बनाने को चाहता ही था. तो फिर 4 फ्रेंड को लिया. तुम्हें I said 25% you, 25% you, 25% you, 25% you. That is how we began. Of course, gradually as we went up, then we realized कि कितने nuances थे. फिर टेक्निकल टीम को हायर किया हम लोग ने. पैसा खर्च किया. पैसा कुछ था नहीं, जो पॉकेट मनी आता था उससे वो मैगी खा के और वो मतलब खाना स्किप कर करके पैसा मतलब वो टेक टीम को फ्री में पिज्जा वगैरह खिलाता था. मुंबई आता था, कोक वगैरह देता था. वो वेजिटेरियन स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे. उनको बोला कि आप लोग बनो. उन लोग ने कोशिश किया, उन लोग ने भी कुछ बनाया नहीं. मेरे को बाद में समझा कि जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे को मेडिकल नहीं आता है, जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे को वेबसाइट बनाने भी नहीं आता. तो फिर वो भी फेल हो गया. ऐसे ही सोच रहे थे क्या क्या कर सकते. फिर देन आई मेट दिस फ्रेंड. ओके, तो my best friend, her name is Dr. Mrinali. She's my co-founder at iMed's Water, and she's also pursuing pediatrics. She's doing MD pediatrics first year in JJ Hospital, like M.I.C.E labs are. So I met her, and then she saw me struggling a lot with this, and she thought that I'll learn. So she had taken 11th and 12th में IT sector. So sorry, 11th and 12th में she took IT. So उसके लिए उसको थोड़ा बहुत आता. So she learned, and वो थोड़ा बहुत ऐसा rudimentary website हमने बनाया. And one thing I realized, because I'm particularly very bad at everything, like if you can see my handwriting,
मेरा हैंडराइटिंग ऐसा है, मेरे को बहुत कम चीजें आते हैं लाइफ में, तो उसके ना आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. But then what it helped is like because and I was also not very great at studies after I entered MBBS because मेरा मन उठ गया था पढ़ाई से. मैं सोचा यार मेरे को तो नॉलेज नहीं है, तो फिर मेरे को टॉपर्स को लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आई स्टार्टेड अप्रोचिंग टॉपर्स कि लोग मेरे को कंटेंट दे. देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग डॉक्टर्स, वो डॉक्टर विवेक नागरकर फ्रॉम ये अभी वो प्रेप लैडर में उनके लेक्चर्स चलते हैं, डीवाई पाटिल के फिजियो के एचओडी. तो ऐसे अलग अलग सब वो ऑस्ट्रेलिया के मतलब इंटरनेट पे अप्रोच करें तो किसको भी करो, गुजरात के प्रोफेसर, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर, वो सब लोग को लाया बिकॉज वो थोड़ा सा कूल भी लगता है ना कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर है और यहाँ वहाँ के. तो सब लोग से बात किया, मैं बोला कि कंटेंट नो, एंड people are very open normally. अपने को लगता है कि if we approach people won't reply वगैरह. Sometimes they are busy, but if you go to them with interesting proposition, they do always agree to it. That has been my experience. I remember अगर आप लोग ने स्टीव जॉब्स का किसने वो स्टोरी पढ़ा है, when he was a kid, he wanted to build something, and तब he was only a kid. तो HP के CEO को सीधा कॉल करके बोला मेरे को ये सब parts चाहिए. He started laughing, but he eventually gave him the parts. So that was me. Like I was in first year, and I was approaching all the HODs and associate professor कि this is what we are doing and करो. And बहुत लोग का मना भी आया. I know many of the professors are right now in online space, so they are not agreeing इस वक्त क्योंकि we did not have money to offer in all those things. मना भी आता है, क्या ही फर्क पड़ता है, इंटरनेट पे मैसेज करने में कौन सा पैसा. जैसे कर करके हमने लिया, यहाँ से टेक टीम, वहाँ से कर करके we created a website. It was running well. In fact, Mansi is there in the call, and she played a great role in building it. She, along with few of her friends, Vani is like one of the people very dear to me. Vani, Mansi, and all these people, they all headed the academic team because they were much better than me in academics. They know it very well. So वो लोग ही पूरा academics handle करते थे, मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा. वैसे एक tech team था जो मृणाली जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो और चैतन्य वगैरह, आई डोंट नो इफ ही इज अटेंडिंग दिस सेशन, दे ऑल हैंडल द टेक टीम एंड आई हैव टू मैनेज वगैरह. इन लोग को कभी का टेक टीम एकेडमिक टीम में झगड़ा होता था, वो सब मैनेज करता था. तो टेक टीम बोलेंगे हमें ऐसे फॉर्मेट में नोट्स चाहिए, एकेडमिक टीम बोलेंगे ऐसे नहीं हो सकता, तो वो सब मैनेज करते. तो सब कहते बट इट वाज ऑल गुड, लाइक वी आर ऑल फ्रेंड्स अभी भी, ऑल ऑफ अस हु आर देयर इन द टीम वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स. तो ऐसे करके हमने किया थोड़ी चीजें ना, यू लर्न व्हाइल यू स्टार्ट. सो इवेंचुअली फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट ना, तो आपको ऐसे वो फिल्म में देखा है एटीट्यूड दिखाने के हो, तो आपको स्टार्टिंग में से अच्छा देयर आर 10 पीपल वर्किंग अंडर मी, ऐसा वो आपके अंदर वो एटीट्यूड रहता है. ग्रेजुअली व्हेन यू आर एट इट, यू रियलाइज कि नोबडी इज वर्किंग अंडर यू, दे आर ऑल वर्किंग फॉर देयर ओन लाइफ, and you are just getting to be a part of it, and that is when you get the humility, and then you start working together, not only in terms of saying it, that is when you're actually attitude develop that. So they are all great people. Like I remember जो IMED की अभी की जो टॉप टीम थी ना उस वक्त एग्जीक्यूटिव टीम, तो वन ऑफ देम इज डूइंग PGI, अगर आप लोग को मालूम है वहाँ पे वो PG कर रही है. मानसी इज गिविंग एग्जाम दिस टाइम, तो शी विल गेट समवेयर, एंड शी ऑलरेडी गॉट अ ग्रेट रैंक, तो उसको ये भी मिल रहा है. देन वन ऑफ देम इज इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अगर आपको मालूम है वहाँ से वो MBA कर रहे हैं. दूसरे जॉन हॉपकिंस से MPH के, तो ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट एंड ऑल ऑफ अस आर स्टिल गुड फ्रेंड. आज सुबह ही मेरा उनमें से एक जन से बात हो रहा था. शी गॉट सिलेक्टेड फॉर प्लैब, तो अभी यूके में जा. तो ऐसे इट वाज अ गुड फ्रेंडली थिंग एंड ऑल वाज गोइंग ऑन. द थिंग इज कि वो फाइनल ईयर वगैरह आया एंड तब ना वो मैनेज करना मुश्किल आता, साथ में पढ़ाई हो रहा, फंड्स का भी क्रंच हो रहा था बिकॉज पैसे नहीं थे, तो फंडिंग वगैरह का कंसेप्ट मालूम नहीं था. एंड वी लाइक एट द पीक ऑफ इट आई गेस वी आर टीम ऑफ 60 पीपल, उसमें से 20-25 तो एकेडमिक टीम के ही थे, तो 60 पीपल थे, अंडर्स प्रोफेसर थे, मैनेज करना मुश्किल आता. वी स्टॉप द स्टूडेंट ऑपरेशंस, बट वी कंटिन्यूड द ये वो ऑनलाइन वगैरह चल रहा था. एज ऑफ नाउ भी 30% ऑडियंस यूएस से आता है उसका, तो वी गेट सम गुड रेवेन्यू थ्रू एड्स. So that was ये IMED का जो चल रहा था. Now one interesting thing happened while I was working on IMED. No? So one day one of my HODs called. Okay, she was a dermat HOD, Dr. Chakote. So she told me that I went to a clinic and she was like, I want to open a dermat operation theater. मैं सोचा मैम खुलने मतलब खुलो, मैं क्या करूंगा उसमें. तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो हमारे हॉस्पिटल वाले हैं वो लोग अग्री नहीं करे बिकॉज दे हैव बिगर प्रायोरिटीज, दे डोंट थिंक दैट dermat operation theater is something that has to be done on a priority basis. So I asked ma'am कि is it actually a priority? Then she explained कि बहुत लोग का मतलब हम लोग को ऐसे ही लगता है, we can talk about all the ये कि these things don't matter and all, but काफी फीमेल्स का मैरिज वगैरह उस वजह से नहीं हो पाता है इन दोस्त मतलब सोलापुर वगैरह एरिया में, और बाहर रूम ट्रीटमेंट के 2 लाख 4 लाख खर्च होते हैं, वो लोग कर नहीं सकते. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैन डू इट एट 10,000. तो हमने सोचा कि अच्छा कैसे कर सकते हैं. आई न्यू हाउ टू बिल्ड वेबसाइट एंड एवरीथिंग, तो वी क्रिएटेड, आई विल शेयर, अगर कुछ ग्रुप वगैरह है माइस लैब का, जिन्होंने कैन ऐड मी, आई विल शेयर दैट लिंक देयर. वो हम लोग ने एनरिच लाइफ का एक वर्कशॉप किया था, तो उसमें भी I used to invest. I used to teach finance and ma'am used to teach about being a great doctor and building a brand and all those things, and we used to collect 300 rupees per student. वैसे कर करके हमने फंड जमा किया, बट 300-300 रुपए से बहुत स्लो स्लो पैसा जमा होता.
देन वी रियलाइज द पावर ऑफ मीडिया, तो हम लोग ने मीडिया में डाला कि अच्छे ऐसे हम एफर्ट ले रहे हैं, ऐसे हम चीजें कर रहे हैं ये करने के लिए. एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल केम. Oh, I guess even Harshal is here. Harshal is a CA. He is also one of the founding members of I.M.I.C.E Scholar. सब जो क्वेश्चन पेपर्स अगर उसमें डाले थे, he typed it himself. उसके पापा उसको डांटते थे और फिर भी वो बेचारा टाइप कर करके किया. He's my 10th standard का बेंच and now he's a CA. So he's one of the non-doctor person in ये team. It is interesting. I'll go to the messages. I'll go to the messages after some time. कहाँ पे? But you feel free to text. हम लोग एक साथ उसके थ्रू जाएंगे. कहाँ पे था कहानी हमारा? हाँ, तो फिर वो ऑपरेशन थिएटर का हमने मीडिया में डाला. बहुत सारे जो डरमैट्स वगैरह को मालूम पड़ा ना कि ऐसे कुछ हो रहा है. मेनी ऑफ देम स्टडीड इन आवर कॉलेज, लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोलापुर. So they all started contributing. Their pharma companies ने दिया वैसे करके. So I'll send you the pics. तो अगस्त में we decided to do this. Around 16-18 अगस्त को पहला सेमिनार था. By December we had a full-fledged operation theater. It is still, if any of you are studying in government medical college सोलापुर, डरमैट ऑपरेशन थिएटर आज भी फंक्शन. तो सोचा यार, मतलब एक बच्चा और एक एचओडी मिलके 3 महीने में ऑपरेशन थिएटर खोल सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो क्या क्या स्टूडेंट, मतलब सोशल वर्क का भी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं. तो पहले मैंने ऐसे कभी इतना सोचा नहीं था ये सब के बारे में. फिर मैं सोचा कि अच्छा, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू. सी बेसिकली फॉर मी इट वाज ऑलवेज अबाउट, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर बहुत क्लीशे हो गया है, बट इट वाज लाइक कि आई आई I find something very irritating and I'm like, no, it should change. So either me or someone should change it. So if that problem does not interest somebody else, then I'll do it myself. तो उसके लिए फिर हम लोग ने सोचा कि अच्छा और ऐसे चीजें कर सकते हैं. फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग द सोशल सेक्टर. तो उसमें एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था सेवांकुर करके. आई गेस आप लोग में से कोई उसका पार्ट होगा. देन आई, वो लोग मुंबई में इतना ज्यादा उनका प्रेजेंस नहीं था. We started working in it on Mumbai. In Mumbai, we did such a great work that it was the latest branch, the last branch to get added, but it surpassed all the other branches in terms of the results that we had, in terms of the engagement that we had. एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि उन लोग ने मेरे को, जब सेवांकुर को, अभी अगर आप लोग को मालूम है सेवांकुर का नाम सेवांकुर भारत चेंज हो गया. So they had asked me कि अच्छा हम लोग को change करना है. I said I created a whole document about how do we see Sevankur in the coming years, and we changed the name to Sevankur Bharat and all the other things. It was a 1 CR project, 1 CR per year वाला project. That was the first time I wrote a project proposal for 1 CR a year. and ये तो फिर उसमें बहुत कुछ समझा कि कैसे वो documentation करते हैं, कैसे वो बनाते हैं. Started playing the big game वैसे उस वक्त. एंड देन व्हाइल ऑल ऑफ दिस वाज गोइंग ऑन, राइट, कोविड के समय था. कोविड के वक्त हमारा सेवांकुर बहुत अच्छा चल रहा था. बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें काम करने के लिए आ गए थे. क्योंकि ऑनेस्टली उसमें बहुत ज्यादा काम मेरे करने के लिए इतना बचा नहीं था. उस वक्त मेरे को कुछ मेरे पहचान के लोग, सम फ्रेंड्स, दे वर प्लानिंग टू स्टार्ट अ कैंसर फाउंडेशन. दे ऑलरेडी स्टार्टेड, बट वो इतना अच्छे से ये नहीं, मतलब वो कोविड था ना तो चल रहा था, बट फंड्स वगैरह का क्रंच था. They asked me to join, and then I told people at Sevankur that I am planning to join their ऐसे करके. तो फिर उन लोग ने बोला देन आई जॉइन CSF, दैट कैंसर फाउंडेशन. एंड विद इन फ्यू मंथ्स हम लोग ने, मतलब मैंने आईमेड में क्या सीखा था, क्राउड सोर्सिंग का, कि मतलब खुद नहीं आ रहे तो आप दूसरे लोगों से करो और फिर सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर हो जाएगा. सेम कंसेप्ट भी यूज विद CSF. उधर क्राउड सोर्सिंग था, यहाँ पे क्राउड फंडिंग था. मेरे दोस्त लोग काफी सारे थे जो लोग सेवांकुर के थ्रू, आईमेड वगैरह के थ्रू मिले थे. लाइक कि अच्छा, मतलब क्या कर रहे हो अभी नया कैंसर, हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट. तो फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हम लोग ये कर रहे हैं, तो पैसे की कमी. तो लोग ने, सबने पूरा महाराष्ट्र भर नेटवर्क बनाया. सब लोग ने क्या क्या ग्रुप बनाया मेरे को मालूम भी नहीं, और विद इन 1 महीना वो लाखों रुपए ला दिया. हम लोग का सब लोन वगैरह चुक गया, वो जो रेंट वगैरह था ना. तो विद इन मंथ उधर भी क्राउड फंडिंग का हम लोग को, वही जो क्राउड सोर्सिंग आईमेट से सीखा था, क्राउड फंडिंग यहाँ पे हो. तो तब भी मेरे को समझा कि अच्छा क्राउड फंडिंग से क्या क्या कर सकते. अच्छा, ये सब के थ्रू ना मेरे पर्सनल लाइफ में इन लास्ट 3-4 years, मतलब ये 2020 का बात है, around 2017-2018 I started going out to solo trips, ऐसा 20 days, and like traveling under 300 rupees a day, ट्राइबल विलेजेस में जाने का, उधर काम करने. मेरे को सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था. उधर कुछ कुछ हेल्थ का करके आ रहे थे, बट वो लोग फिर कॉल वॉल करते थे, अच्छा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आई कुड नॉट गो बैक. सो आई थॉट कि अच्छा कुछ स्टेबल करना है हेल्थ केयर में, एंड ट्राइबल हेल्थ वगैरह में कुछ कर सके. तो मुंबई के पास का ट्राइबल हेल्थ पालघर रीजन में है. तो वहाँ पे वो लोग ना ऑलरेडी काफी चीजों में काम कर रहे थे, मतलब एजुकेशन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स दे वर डूइंग, बट दे डिड नॉट टच हेल्थ. उन लोग का हेल्थ, फॉर वॉट एवर रीजन दे हैड नॉट स्टार्टेड. तो हमने सोचा अच्छा उधर हेल्थ का काम चालू करते हैं. उसमें वी वर लकी कि एक जो ये है, क्या बोलते हैं, हाँ, महाराष्ट्र हेल्थ केयर के डेप्यूटी डायरेक्टर थे, एक्स डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र है, Dr. Sarvadekar sir. He came. He joined as a president. I became the secretary, and then we created a team of all the top doctors of Mumbai. So our gynec head for that tribal project was the head of Nanavati, Dr. Gayatri Deshpande. She is the gynec HOD of Nanavati. Our medicine head was the head of Hinduja Hemat department. So that we got top doctors from across the, and plus we had more connections also. We had people who were
managing the Ayushman Bharat of all the state hospitals and the BMC hospitals and Tata hospitals. तो सबसे connection वगैरह करके if you notice ना मतलब all the things that I was doing in the past they all help in आगे का लोग कोई कोई वे में help करता है वैसे कोई कोई में नहीं बहुत सारे ways में help करता है तो वैसे करके फिर ट्राइबल हेल्थ में क्या उधर हम लोग ने क्या चालू किया कि एंड टू एंड हेल्थ केयर मतलब बेसिकली हम लोग हर विलेज में विलेज हेल्थ वर्कर को सिलेक्ट किया उन लोग को ट्रेन किया विद द हेल्प ऑफ दिस मुंबई डॉक्टर्स एंड देन फॉर प्राइमरी केयर तो ऐसे दे देंगे टर्शरी केयर के लिए क्या करना है टर्शरी केयर में उधर पास में वेदांत मेडिकल कॉलेज वी टाइड अप विद देम दैट will because it's a private medical college they sometimes lack patients so they give you patients and you give us this आप हमें मतलब इनको प्रायोरिटी में ट्रीटमेंट दो एंड देयर हॉस्पिटल नाइस एंड हॉस्पिटल इज मेड टू ट्रीट पेशेंट्स तो उसके लिए हम लोग ने वो चालू किया और वहाँ पे पेशेंट्स वगैरह को भेजना चालू किया दे स्टार्टेड ट्रीटिंग देम so that way we could give them primary to tertiary health and because we had many top doctors from Mumbai we could also get some of the operations done at JJ hospital or many other hospitals in Mumbai जब जैसा नहीं and one thing we documented all of it and even मतलब there were lot of ये सब चलो ठीक है curative treatment है preventive में क्या कर रहे हो तो lot of time if you all know Palghar has a lot of malnutrition का issues तो लोग malnutrition वगैरह में क्या करते हैं कि लोग जाके नाश्ते बिस्किट्स वगैरह देते हैं उसमें दिक्कत करते हैं तो शुगर एडिक्शन हो जाता है बस उन लोग को बिस्किट्स वगैरह का टेस्ट इतना जमता भी नहीं what we did was we wanted them to start kitchen farming because all of them गांव वगैरह में लोग ट्राइबल जिसमें हर एक के पास खुद का लैंड होता है वहाँ पे इनकम मतलब हाईएस्ट हम लोग जब विलेज सर्वे करते हैं ना हाईएस्ट इनकम इज 8 to 10,000 अ मंथ वो भी वो जो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं मुंबई में तो हमने बोला कि आप करो और हम लोग ने उनको क्या बोला किचन फार्मिंग करो मतलब किचन वर्ड यूज नहीं किया और हम लोग उसको बेचने में हेल्प करें हमारा वो इंटेंशन क्या था लोग पैसा जो कमाएंगे वो कमाएंगे बट अगर उन लोग ने फार्मिंग चालू किया तो अगर सब्जी उगा रहे थोड़ा बहुत सब्जी घर पे लाएंगे तो खाने का आदत होगा बिकॉज उन लोग को सब्जी खाने का आदत नहीं था लोग चावल और अचार ऐसे खाते थे तो उससे उन लोग को सब्जी वगैरह इंट्रोड्यूस होता है ऐसे हम लोग प्रिवेंटिव इसमें किया हम लोग ने ये सब डॉक्यूमेंट किया and we started taking it out to people and we showed it to people this is what we're doing and this is Mansi ma'am may I know more about M.I.C.E lab अरे बाबा Zinal ma'am is the head of M.I.C.E lab Mansi ma'am is IMED scholar so Sinal will tell you more about it. It's a very great lab, and in fact, you are part of the IMED Scholar cohort. Now we are doing. Zinal is going to take one of the guest sessions for the IMED Scholar cohort. Startup school. So anyway, coming back, यहाँ पे थे हम लोग हाँ वो ट्राइबल विलेजेस तो ट्राइबल विलेजेस में हम लोग वो सब किए और फिर ना हम लोग ने देखा है कि अच्छा हम लोग के इंटरवेंशन से पहले क्या था बाद में क्या था द सेल्फ डिफेंस वगैरह उनको सिखाया और काफी ऐसे साइंटिफिक वे में किया फिर वो पहले तक बहुत सारा अच्छा काम किया हम लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे थे अभी डॉक्यूमेंटेशन किया और ये सब फिर हम लोग को ट्राइबल मिनिस्ट्री से बुलाया तो दिस मार्च I was called by tribal ministry March 16 17 ऐसे कुछ full paid trip and they are like you come and we'll because they are basically branching out tribal health from rural health so it was policy making and when I went there no my jaw dropped I'll tell you why because like तो उधर सब बड़े बड़े मिनिस्टर है हेल्थ मिनिस्टर ट्राइबल मिनिस्टर वाटर मिनिस्टर all of them were there but that being apart while I was in MBBS there were a lot of people जिनके मैं lectures देखता था इंस्पायर होने के लिए कि अच्छा कैसे इंस्पायर ऐसे मेरे जैसे वो 26 27 साल के बच्चे नहीं हो 50 साल वगैरह के जो लोग ने अपना पूरा करियर उसमें दिया उनके लेक्चर्स दिखा था आई वाज सो फैसिनेटेड बाय दिनचर्या ये है मैं उनको यहाँ मैसेज भी किया था फेसबुक वगैरह पे उन लोग में से ज्यादा लोग ने रिप्लाई नहीं किया बट व्हेन आई वेंट देयर नो फॉर ट्राइबल हेल्थ का तो लॉट ऑफ देम वर देयर एंड मैं सब लोग को जा के बुला रहे सर मैं आप लोग का लेक्चर देखता था एंड अभी आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू ये बी अ पार्ट ऑफ द सेम टीम जहाँ पे हम लोग ये सब काम कर रहे हैं तो उन लोग भी काफी खुश हुए दे आस्क्ड मी अबाउट माय जर्नी one of the benefits if you do something apart from usual you get a lot of access I tell you today morning we started a new project I'll talk about it in the end but वो एक मैम के साथ हम लोग कर रहे हैं वो मैम का मैंने कोर्स अटेंड किया है मेरे पास वो कोर्स पे उनका सर्टिफिकेट पे उनका साइन है आई हैव अटेंडेड प्रॉपर ऑफिशियल कोर्स उनका किया हुआ एंड आई यूज्ड टू लुक कि अच्छा वो वैसे ऐसे करते हैं और अभी मालूम पड़े कि उनके साथ ही हम लोग कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट करते हैं जो मुंबई इनफैक्ट मेरा जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का साइन पे रजिस्ट्रेशन है ना वो डॉक्टर संजय shit I forgot his name something डॉक्टर नॉट द डॉक्टर बट संजय करके कोई तो है जिनने हमारे एमएमसी पे साइन किया था अगर आप लोग में से कोई 2014 2013 बैच के आप लोग में भी उनने ही साइन किया हुआ था वाज अ मेडिकल सेक्रेटरी डायरेक्टर ऐसे कुछ तो उनसे भी मैं मिला उनके साथ भी काम किया तो ये सब बहुत ऐसे अच्छा लगता है जैसा मतलब यू फील दैट यू आर डूइंग गुड वर्क एंड यू गेट एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम जैसे आप अपने आप उस लेवल के लोगों से बात करते हो अपने आप आपको समझते हैं कि अच्छा वो लोग कैसे फंक्शन करते हैं उन लोग कैसे सोच रहे हैं तो फिर आपका भी लेवल अपने आप बढ़ते जाते हैं देन यू स्टार्ट बिकमिंग मोर वैल्यूएबल योरसेल्फ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मोर योरसेल्फ
एनीवे ये सब दिस वाज अबाउट ट्राइबल मिनिस्ट्री, यूनाइटेड नेशंस वगैरह में सिलेक्ट हुआ, आई सेंड यू द लिंक। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के वेबसाइट में भी हमारा ट्राइबल। तो ये सब जब चल रहा था तो फिर there was a unique combination of skill set that I acquired, a doctor who does public health research, ना, तो ये सब प्रोजेक्ट्स करते थे, फिर वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो गया, एंड देन सम स्टार्टअप्स फाउंड इट यूजफुल, उनको लगा कि अच्छा ये जो कॉम्बिनेशन है दैट माइट बी यूजफुल फॉर अस टू, so one of them was MICE, they also approached me to, Krishna was there then, so he asked me कि he called me one night and he was like कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप मेंटर करेंगे क्या, तो मैंने बोला कि एनी टाइम रेडी। तो फिर वैसे उसके ऊपर चालू किया, फिर और भी कुछ कुछ स्टार्टअप से किया, फिर मेरे को लगा अच्छा ये सब जो मैं स्टार्टअप स्पेस में तब था नहीं, लाइममेट था, बट मेरे को नहीं लगा कि वो स्टार्टअप होता है, तो फिर मैं सोचा कि अच्छा ये स्टार्टअप स्पेस भी अच्छा है, यहाँ पे भी हम लोग कुछ कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे वगैरह किया, फिर मैरो वगैरह के साथ काम करना चालू किया, तो मैरो भी अच्छा लगा, अच्छा ये ऐप तो यूज करते थे, अब इनके साथ करते हैं, दीपू सेवन सर के साथ काम करा, आई स्टिल रिमेम्बर लाइक दीपू सेवन सर एक दिन मेरे को सैटरडे रात को 10:30 बजे मैसेज किए थे, और 11:30 11:30 बजे तक चैट किए, और वो मेरे को बहुत सब चीज बोले थे, मतलब मेरे को जो सब लग रहा था मैं जीवन में सही कर रहा हूँ, फिर मेरे को बोले थे कि वो सब क्यों बहुत ऐसे बोगस थॉट्स है एंड क्यों मेरे को अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर, तो वो सब ऐसा बहुत डियर, मतलब वो सब कॉन्वर्सेशन बहुत डियर है मेरे को, तो वो सब चीज सीखा, मैरो के साथ काम किया, ये सब जो अलग अलग स्टार्टअप से काम करा था ना, फिर मेरे को एक बहुत अच्छा फुल टाइम रोल मिला, एंड दे वर पेइंग वेरी हाई, तो फिर मेरे को नॉर्मली एज अ डॉक्टर तो उतना अर्निंग नहीं हो रहा था, मेरे को मालूम है कि मेरे साथ जो दोस्तों जो पीजीजी भी करके हो गया उनको भी उतना अर्निंग नहीं मिला, तो ज्वाइन वाइन किया, आई वर्क देयर फॉर 6 मंथ्स, बट आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली आई डिड नॉट एंजॉय, मतलब फॉर 2 3 रीजन, फर्स्ट थिंग आई रियलाइज कि जो चीज के लिए मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मतलब मनी ऑफ कोर्स इज अ बिग रीजन, बट दैट अलोन इज डज नॉट सेटिस्फाई यू, आपको कैसा है ना कि जब तक आपने खाना नहीं खाया ना तब आपको लगता है यार खाना खाएंगे इतना, मतलब खाना सपोज आपको तंदूरी पसंद, तंदूरी खाने से पहले लगता है कि अरे खाएंगे तो इतना मजा आएगा, खाने का कभी क्या लगता है मतलब ठीक ही था, ऐसा कुछ इतना खास रहता नहीं, तो वैसे ही ना वो जब तक पैसा नहीं मिलता तब लगता है नहीं पैसा कमाने पैसा कमाने, तब जब अच्छा मिल रहा है स्टार्टिंग में मजा आ रहा था, बट लगा कि अच्छा बस ये काफी नहीं, मतलब पैसा तो कमाने है बट ये पैसे के साथ ऐसा मजा भी है, तो फिर ये वन मोर थिंग आई रियलाइज आई डिड नॉट परफॉर्म माय बेस्ट डे, मतलब वो मेरा परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में सही था, मतलब मैं उन लोग को हर महीनों का लाखों का रेवेन्यू दे रहा था, तो मेरा खुद का पगार मुझसे ही निकल रहा था, बट एंड वो लोग भी पेमेंट एंड ऑल वाज गुड, बियॉन्ड द बेसिक पे जो देते थे ना, आई कैन नॉट डिस्क्लोज वो सब डिटेल्स बिकॉज वो पब्लिक फोरम है, बट अगर आप लोग मेरे को कोई ऑफलाइन मिलोगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा, दे आर गिविंग मी रेवेन्यू शेयरिंग आल्सो, द पार्ट ऑफ द इनकम दैट वाज बीइंग जनरेटेड आई अर्न, नो मैटर हु मेक्स द डील आई गेट द मनी, आई जस्ट होप nobody from the company is attending this, I'm not supposed to tell this, Alagiri, if you're watching this please don't sue me, okay? So that was the deal I had, and we are making money, but I realized that जो मेरे साथ कलीग्स वगैरह थे ना, they were all very nice people, but somehow मेरा नेचर उनका नेचर इतना कंपैटिबल नहीं था कि उनको मेरे साथ काम करने में इतना मजा नहीं आता, मेरे को इतना मजा नहीं आता ना, तो इतना अच्छे से हो नहीं पा रहा, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई फुल टाइम जॉब वगैरह नहीं जमेगा, जितना ही पैसा रहेगा, आई टेल यू दे ऑफर्ड वेरी गुड पैकेज, अगर इफ आई वुड हैव स्टेड विद दैट कंपनी ऑफ 4 इयर्स आई वुड हैव बीन अ करोड़पति बिफोर आई टर्न 30 ना, तो फिर बहुत सही चल रहा था वो, लेकिन मतलब इन करोड़पति बाकी सबका अलग ना, बस पेमेंट से उतना, बाकी आपका जो वेल्थ वगैरह जो इन्वेस्टमेंट है वो सब का अलग, बस आपको पे उतना जाए, ये तो सही है, नॉर्मली डॉक्टर के रूट से तो इतना होगा नहीं, बट फिर मैं सोचा कि अच्छा दिस आर माय प्राइम ईयर्स, तो फिर अगर ये ईयर्स इसमें डाल दे तो फिर वो नहीं रहेगा, मतलब this is not the 4 years that I'm giving, this is part of my life, no? My most youthful years I'm giving to them, so I did not want that, हमने कि अच्छा जितना भी कमाएंगे खुद का करके कमाएंगे, खुद में मजे करने, I started doing my own stuff then. And like one of the things that I run now is I met startup school, some of you are part of it I guess, Priyam is part of it and Anuj is part of it, और भी बहुत सारे जन रहेंगे उसमें, Zainab is part of I met grand rounds, तो वो सब काफी आप लोग में से हेल्प करते, तो उसमें मेरा क्राइटेरिया क्या था ना, वो आई मेट स्टार्टअप शुरू के हिमानी को कहीं से तो मेरा नंबर वगैरह मिला, वो मेरे को कॉल की मैं उठाया नहीं, फिर दोपहर को कॉल की वापस उठाया नहीं, फिर शाम को कॉल की मैं अननोन नंबर उठाता नहीं इतना, वो कॉल की दिन में 3 बार, यार ऐसी बंदी कौन है जो दिन में 3 3 बार कॉल कर, फिर मैसेज किया उसको, फिर बात करने मेरे को बंदी बहुत सही लगी, मेरे को मतलब बहुत मजा है उससे बात करके, एंड आई फेल्ट कि शी इज अ वेरी नाइस एंड वार्म पर्सन, समवन आई वुड लव वर्किंग, तो प्योरली मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट इन द सेंस आई लाइक दिस स्पेस, बट आई हैड नो इंटेंशन, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान टू स्टार्ट दिस, बिकॉज एट दैट पॉइंट मेरा डिसीजन था कि सब चीज छोड़ के मैं बहुत सारे स्टार्टअप के साथ कंसल्टिंग वगैरह कर रहा था, कंसल्टिंग से अच्छा मिल जाए, एक स्टार्टअप आपको 30 50 महीने का दे देता है, आप 4 स्टार्टअप से करो 1.5 2 वैसे ही हो जाए, बट आपको ऐसा कुछ यूनिक इनसाइट्स लाना पड़ेगा, वी टॉक अबाउट इट हाउ कैन यू मेक अ रोल करियर इन दिस, बट मुझे हिमानी बंदी सही लगी, तो मैं इसके साथ काम करने का, तो उसके लिए फिर हमने आई स्टार्टअप स्कूल चालू किया, ग्रैंड राउंड चालू किया, क्योंकि व्हेन आई री एंटर्ड द क्लिनिकल फील्ड, ऐसा क्लिनिकल करेंगे पीडियाट्रिक्स करेंगे और कुछ करेंगे नहीं, बस बच्चे लोग मतलब दिन दिन भर डॉक्टर
दिन भर हॉस्पिटल में रहना था, बच्चों के साथ रहेंगे तो मजे भी आते थे, क्यूट क्यूट भी लगते बच्चे, तो बूढ़े बूढ़े पेशेंट के साथ कौन रहेगा। मैं सोचा कि चलो बच्चों के साथ रहेंगे, चाइल्ड हेल्थ करना है। और चाइल्ड हेल्थ में कैसा सोशल स्पेस में भी मेरा ऑलरेडी जो सोशल का प्रोजेक्ट चल रहा था ना, लॉट ऑफ इट वाज ये चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड ही, वो ट्राइबल हेल्थ वगैरह में। एंड आई फील इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के भी काफी अपॉर्चुनिटीज, आप इम्पैक्ट भी काफी ला सकते हो। पहले 2-3 साल में बच्चे का 80% ब्रेन डेवलप हो जाता है, 2 साल में 50% हाइट डेवलप हो जाता है। तो इफ यू इंटरवेन एट द राइट स्टेज, दे विल हैव अ फेयर चांस एट लाइफ। अदरवाइज लोग रेस चालू करने से पहले ही पीछे हट जाएंगे, है ना। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स बट दैट इज फॉर सम अदर डे। तो वो चाइल्ड हेल्थ वगैरह में मैं पूरा वो करने का सोचा। हाँ, फिर जब इसमें क्लिनिकल फील्ड में वापस आया ना, मैं तो छोड़ दिया था क्लिनिकल फील्ड, वापस आया, मेरा बॉन्ड वॉन्ड करना था, तो मैं आया और पीडियाट्रिक्स ही ज्वाइन किया। तो तब देखा है बहुत सारे पेशेंट जो अपने पास आते हैं, वो हॉस्पिटल में आने से पहले दे आर वेरी सिक एंड वेरी बैड, सो दे नीड मेडिकल इंटरवेंशन, प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन। अब जो जीपी प्रैक्टिस करते हैं ना, दे ऑल मोस्टली ग्रेजुएशन का स्टार्ट कर देते हैं, बीएमएस कंप्लीट हुआ, बीएचएमएस कंप्लीट हुआ, चालू करते हैं। अब दिक्कत क्या है, दे हैव लॉट ऑफ ईगरनेस टू लर्न, उन लोग को बहुत सीखना पसंद, बट उन लोग को बहुत बार ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाते, कोई उन लोग को इतना अच्छे से सिखाता नहीं है, उन लोग का एक्सपोजर नहीं होता, दे डोंट समटाइम्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन इन टॉप हॉस्पिटल्स, उन लोग को वैसे केसेस नहीं देते, नहीं होता। So okay, I can be that bridge. I'll teach them clinical. Like Zenom is there in the call. She's such a amazing girl. If you'll be in, अगर आप लोग में से कोई IMED ग्रैंड राउंड्स में, तो आपको मालूम होगा। Any question? Actually ना, वो मेरे को 2 दिन पहले मैसेज की, उसने 2 पेज का बनाया था। Basically what I do in the grand rounds is whatever cases I come through, I share with them. And then बीच में उनके सेशंस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं on CBC, blood reports, and X-ray reading, CT reading, so on and so forth. आजकल कम हो गया frequency, बट वापस हम लोग उसमें चालू करने वाले कि टॉप डॉक्टर्स ऑफ मुंबई फ्रॉम टॉप हॉस्पिटल्स, केएम सैन, नायर, जे वाडिया, उधर के डॉक्टर्स उनको सिखाएंगे, और सो दैट इफ दे वांट टू प्रैक्टिस, अगर वो लोग कर ही रहे तो दे शुड हैव द बेस्ट शॉट एट इट, सो दैट दे कैन अर्न वेल एंड पेशेंट्स आर सेव, तो प्रिवेंटेबल डेथ्स प्रिवेंट। तो जो भी जनरल प्रैक्टिशनर, टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस इनिशिएटिव इज प्राइमरी केयर फिजिशियंस, तो उसके लिए। एंड आई एम अज्यूमिंग कि इफ यू इवन चार्ज समथिंग, तो फिर लोग पे करते हैं, और वैसा कुछ नहीं। मेन है कि आपको मतलब उन लोग को फायदा होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, सिस्टम को फायदा होना चाहिए, तीनों रहेगा ना, तो यू विल आल्सो बी मोर एक्साइटेड अबाउट इट। सो दिस जेनब गर्ल नो, शी टेक्स्टेड मी, वो मेरे को ना एक दिन वो मेरे को 2 फोटो भेजी, उसमें मेरे को बोली कि 45 डेज हो गए, ये सब टॉपिक्स आपने सीखे। मेरे को भी नहीं मालूम था कौन से टॉपिक सीखे, तो इतना डिलीजेंटली सब दिख रही थी, और वो सब ऐसे कॉन्वर्सेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। मेरा कंसेप्ट ये कि अ पर्सन इज सो मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग, दे शुड लर्न दिस। तो फिर हमने आईमेड ग्रैंड राउंड चालू किया। एक्चुअली इससे पहले हम लोग वो मेड प्लाज्म वगैरह में ना, हम लोग स्टडी अब्रॉड का चलाते, दैट वाज वेरी रिच मनी। सो बेसिकली एवरीबॉडी नाउ दे हैव रियलाइज्ड दैट देयर डिग्री इज नॉट गोइंग टू गिव देम इनफ मनी, तो उनको लगता है फॉरेन जाके पढ़ेंगे तो कमा लेंगे, तो उसके लिए लोग फॉरेन जाते हैं। तो जब उन लोग को इतना जानना ही है, तो मुझे को तो जाने की इच्छा नहीं थी, मैं सोचा अच्छा वो लोग जा रहे हैं तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ, तो मदद करते करते थोड़ा पैसा भी कमा लेते, तो और अच्छा बात है। जैसे करके स्टडी अब्रॉड का हमने चालू किया, और उसमें अच्छा पैसा आ रहा था, क्योंकि फॉरेन में कैसा यूएस वगैरह का वो आप चार्जेस डॉलर्स में ही, आप वो इंडिया में फिर भी सब फीस डॉलर्स में ही रखने का, तो $350, $100, सबसे सब बेसिक सर्विस भी $100 से चालू होते हैं, $350, $500 ऐसे ऐसे करके सर्विस रखने का। और लोगों को चाहिए। अब देखो ना, मैंने हेमर से क्या सीखा कि आपको एक कॉमन ये है कि मल्टीविटामिन बेचो, पेन किलर बेचो। अब पढ़ाई करना है नहीं करना है वो ऑप्शनल है, बट अगर यूएस जाना है तो उनको वो सब करना ही पड़ेगा, इज नो ऑप्शन अबाउट इट। तो उससे लोग उसमें पैसा खर्च करते हैं, तो उसके लिए उसमें ना वी मेड गुड मनी, उससे अच्छा पैसा आ रहा था, बट मेरे को पर्सनली बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। एंड प्लस आई रियलाइज दैट बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स आई कैन नॉट फोकस ऑन इट अलोन, so I wanted someone to help। तो अगर आप लोग में से कोई स्टडी अब्रॉड कर रहा है या आप लोग को प्लान है, तो विल स्टार्ट दैट एज पार्ट ऑफ आईमेड। बट अगर आप लोग में से या कोई और नहीं आ रहा है मेरे को हेल्प करने के लिए, तो फिर हम लोग स्टडी अब्रॉड फिलहाल के लिए पॉज। तो हाँ, तो फिर उसमें इतना मजा नहीं आता, बट ये ग्रैंड राउंड स्टार्टअप ना, दिस थिंग दैट आर रियली हेल्प, मतलब आई फाइंड इट वेरी यूजफुल कि अच्छा, मतलब जो लोगों को असली में करना है, स्टार्टअप्स में जाना है, विल बी द ब्रिज फॉर देम टू गेट इनटू स्टार्टअप्स। अगर किसी को अच्छा क्लिनिशियन बनना है, विल बी द ब्रिज। तो वी आर अर्निंग मनी, they are happy, it is helping the system, everybody is happy, so you stay more joyful by doing this। and मतलब पैसा कमा के भी तो आप खर्च करके जॉय लोगे ना, सीधा डायरेक्टली जॉय लोगे। तो ऐसे करके हमने आईमेड का चालू किया। अब वो सबसे ना, ये सब अभी इतने साल से कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करते थे, वो सबसे इतना बहुत पैसा आने लगा। तो अभी रिसेंटली हम लोग ने ऑफलाइन बिजनेसेस में चालू किया, आई डोंट नो इफ इट काउंट्स अंडर एंटरप्रेन्योरशिप, बट देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन, मतलब मी इन द सेंस, मैं, पापा और मेरे भाई, माय ब्रदर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, my dad is also a doctor, तो फिर हम लोग we started investing in diagnostic chains, pharma companies and hospitals। now if you notice no, I tell you, थोड़ा सा एक और टॉपिक बोलता फिर आप लोग बेटर समझेगा। अभी आई मीन वाडिया ना, तो वाडिया हैज देयर ओन जर्नल, वाडिया जर्नल ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ ऐसे। तो उसमें द रिसर्च आर्टिकल या फिर जो वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रीफ कम्युनिकेशन दैट आई एम गोइंग टू पब्लिश इज अबाउट इंफॉर्मेशन थेरेपी।
हाउ डू यू यूज इन्फॉर्मेशन थेरेपी टू नॉट ओनली एज अ हेल्थ एजुकेशन ऐसी बस बोलने के लिए, बट एज अ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन टू इम्प्रूव द क्लिनिकल आउटकम्स। अभी कंसेप्ट में बहुत बिलीव कर रहे हैं मास्क। एक सेकंड ना, आप लोग में से कोई ठीक है, थाने के एचओडी का एक कॉल है, मैं आप लोग को बताऊंगा बाद में क्या बोलूं, इसके लिए कट करना पड़ा। ये इसका भी स्टोरी बोलूंगा मैं आपको, थाने वाला। बट एक सेकंड, यार है वॉइस, कहाँ पे थे हम लोग? जीनल क्या बोल रहा था मैं? हाँ Informative हाँ, therapy. इन्फॉर्मेशन थेरेपी, सॉरी। हाँ, तो मास के साथ भी ना हम लोग वही कर रहे थे, बट उसमें ना कमर्शियल एंगल ढूंढना मुश्किल है इन्फॉर्मेशन थेरेपी में, बिकॉज इंडिया में कॉपीराइट प्रोटेक्शन का तो कुछ है नहीं। आप कितना भी मेहनत से वो सब बनाओ, कॉमिक चल रहे हैं, लोग कलर प्रिंट आउट निकाल के बांट देंगे, तो आप कमर्शियली नहीं कर सकते। और मेरे को कंसेप्ट फिर भी पसंद है, मैं ना सोशल सेक्टर से करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है ना, मेरे को रिसर्च करना है, मैं वो इन्फॉर्मेशन थेरेपी का आर्टिकल डालो, पब्लिश भी हो जाएगा वाडिया के जर्नल में, शायद चालू होगा नहीं होगा, मैं यहाँ गिड़गिड़ाऊंगा, यहाँ उसके बारे में स्टेटस डालूंगा, खत्म हो जाएगा, वो आइडिया में ही बंद हो जाएगा। आज जो मैंने प्रोजेक्ट चालू किया ना, वो चाइल्ड हेल्थ का, मैं उसके बारे में बोलूंगा। तो आज ही हम लोग ने उसको चालू किया, नेक्स्ट मंथ से हम लोग वो, मतलब मुंबई के 50 स्लम्स में हम लोग चालू कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन थेरेपी वाला काम। तो ये सबसे क्या मेरे को जैसे प्रॉब्लम लगा कि अच्छा, प्राइमरी केयर फिजिशियंस को जितना नॉलेज होना चाहिए उतना नहीं है, तो लगा, तो फिर हम लोग स्टार्ट करें। अभी आई गेस दोनों मिला के 350 400 डॉक्टर्स उसमें कुछ सीखते हैं अक्रॉस महाराष्ट्र एंड अक्रॉस द कंट्री, जो ग्रैंड रॉन्स का सीख रहे हैं। स्टार्टअप स्कूल में लगता है 200 400 जन है, उसमें हम लोग कम्युनिटी में इतना एक्टिव नहीं रहते हैं अभी फिलहाल समय की वजह से, बट कोहॉर्ट में 30 जन है कुछ, तो उनको हम हेल्प करें स्टार्टअप में। तो दिस आर थिंग्स दैट आई लव एंड दिस आर द कंसेप्ट दैट आई वांट, दिस इज द चेंज दैट आई वांट टू सी इन द वर्ल्ड, एंड वो आ पा रहे हैं मेरे बिजनेसेस के थ्रू या मेरे सोशल वेंचर्स के थ्रू। तो दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग एंड दैट इज व्हाई आई कैन कीप डूइंग इट, बिकॉज़ यू डोंट गेट बोर्ड वैसे। तो और प्लस कैसा है ना कि अगर आप स्केल इम्पैक्ट का चीज करोगे ना, जो भी अभी आज मैंने एक प्रोजेक्ट चालू किया, मेरे पास सुबह से 10 मैसेज आ गए, अरे विशाल बोल क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी साथ में कर। मेरी एक फ्रेंड है नताशा करके, आई डोंट नो इफ शी इज देयर इन द कॉल, वो भी मेरे को बोली कि अरे इन्फॉर्मेशन थेरेपी कर रहे हैं, कंसेप्ट मस्त है, तो बोल कि कैसे हेल्प कर सकते। शी इज ऑल इंडिया रैंक 90 फिजियोथेरेपी, तो शी इज अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। तो ऐसे अपने आप अगर आप कुछ ऐसे बड़ा स्केल और इम्पैक्ट वाला चीज करोगे, मीनिंगफुल करोगे ना, तो अपने आप आपको दोस्त मिलेंगे, लोग भी आपसे मिलना चाहेंगे। अपने आप बड़े बड़े जन से, एचओडी से, और मतलब जो भी आप लोग को चाहिए ना, जो बड़े कंपनी के फाउंडर्स वगैरह, आप उनसे मिलोगे, बिकॉज यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू ऑफर देम। वरना आप उनको मैसेज करोगे, अरे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मेरे को हेल्प करो, थैंक यू बोल के बंद कर दीजिए, उससे आगे कुछ होगा नहीं। दैट इज नॉट नेटवर्क। द इजीएस्ट वे टू बिकम टू हैव अ नेटवर्क इज टू बी अ नेटवर्क योरसेल्फ। पीपल शुड वांट टू बी योर फ्रेंड, तो अपने आप वो हो जाता है। अब मेरी लाइफ का मैं आप लोगों को तकलीफ बता, ये सब क्या हुआ ना, ये सब मैं जो करा था, इफ यू नोटिस सब बहुत डाइवर्जेंट, स्टडी अब्रॉड किधर, ट्राइबल हेल्थ किधर, फिर वो जो भी और अलग अलग चल रहे हो, डायग्नोस्टिक चेन किधर, तो वो सब डाइवर्जेंट था। मुझे यार अभी तो चाहिए, ठीक है अभी पैसा कमा रहे, 2 ढाई महीने का मिल रहा है, बट आगे कैसे करेंगे, आगे जब बड़े लेवल पे लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज में बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचा कि एक यार फोकस एरिया चूज करना पड़ेगा, अभी तो 25 साल का हूँ तो चल जाएगा, आने वाले 10 20 साल के हिसाब से मुझे फोकस एरिया चूज करना पड़ेगा, जैसा कि उसमें क्या करूँ। तो उसमें मेरा क्राइटेरिया था कि व्हाट डू आई लव डूइंग, बिकॉज मेरा प्राइमरी कंसेप्ट ही वैसे, इफ आई लव डूइंग तो ये आई डू इट, अदरवाइज मेरे को इतना मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं कि वो मेरे नखरे हैं, अगर मेरे को पसंद है तो मैं उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, फिर लोग गाली देके निकाल देते, या तो ऐसा कुछ बहाना देके मेरे को निकाल देते इनिशिएटिव में। आप लोगों को वो सब चीज बताए जो अच्छे हुए, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनने मेरे को धक्के मार के निकाले भी है, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर, आई डिड नॉट गिव देम द रिजल्ट्स दैट दे वांटेड। तो हाँ, तो फिर मैं कि कौन सा, तो चाइल्ड हेल्थ मेरे को पसंद आते, बच्चे वगैरह है, इम्पैक्ट काफी है। अगर आपने मेटल एंड चाइल्ड हेल्थ ठीक कर दिया, तो आप बेसिकली कंट्री के हेल्थ को ठीक करोगे। तो अब मेटल में कैसा, सर्जरी और दिन भर गायनेक में बिजी रहना, मेरे को जमता नहीं है, तो मेरा भाई गायनेक कर लिया और मैंने चाइल्ड हेल्थ ले लिया। तो फिर उसके अंदर वर्क किया। मैं आई ऑलवेज यूज द वर्ड चाइल्ड हेल्थ रादर देन पीडियाट्रिक्स, बिकॉज पीडियाट्रिक्स बोला तो लोग सब लोग एकदम वो क्लिनिकल इसमें चले जाते हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और वो क्या डाउन सिंड्रोम, वो सब में चले जाते हैं। चाइल्ड हेल्थ मतलब जो है कि बच्चे लोग को सेहतमंद रखो, दे शुड हैव गुड हेल्थ, वो चीज पे फोकस करना। तो उसलिए मैंने चालू किया, मतलब कि अच्छा ये करूंगा चाइल्ड हेल्थ, और आगे जाकर जब पीडियाट्रिशियन बन जाऊंगा, कम्युनिटी पीडियाट्रिक्स करूंगा, मुंबई के स्कूल में जा जाके ज्ञान बांटूंगा, और वो आंगनवाड़ी वगैरह में ये करूंगा ऐसे। तो वो सोच के मैंने कम्युनिटी पीडियाट्रिक्स मतलब पीडियाट्रिक्स ज्वाइन किया। कम्युनिटी पीडियाट्रिक्स तो कोई कोर्स नहीं, वरना मैं करता हूँ। तो वो फिर ऐसे पीडियाट्रिक्स ज्वाइन किया, और यहाँ पे भी यही कंसेप्ट के साथ। अब उसमें क्या हुआ, आज ना, आज सुबह मैं आपको बोलता हूँ, मीटिंग था मेरा, एंड हम लोग अभी चालू करें 50 अर्बन स्लम्स मुंबई में। अगर आप लोग मुंबई में से हो तो बोरीवली से लेके कोलाबा तक, और सेंट्रल लाइन में मुलुंड तक, आगे और बढ़ाएंगे, बट अभी 50 अर्बन स्लम्स में चालू कर रहे हैं। मोबाइल हेल्थ वैन, ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग, डेवलपमेंटल माइलस्टोन मॉनिटरिंग,
इन्फॉर्मेशन थेरेपी, ऑल द कंसेप्ट दैट आई लव ना, जो मैं इन्विजन करता हूँ होलिस्टिक हेल्थ के, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी ऑल कॉम्बाइंड, ऐसा नहीं बस एमबीबीएस वाला अपना वो कर रहे हैं। यूजिंग मेडिकल इनोवेशन, हम लोग Zinal would be happy to hear. So we are using a lot of point of care devices and lot of this technology innovation. So आईटी बॉम्बे वाले में कुछ बना है मस्त मस्त चीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने का, तो वो भी हम लोग देने वाले हैं। वो एआई स्टेथोस्कोप बना है बैंगलोर के टीम में, वो भी हम लोग देने वाले हैं। ऐसे कर करके हम लोग ये चालू कर, ऑल द थिंग्स दैट आई लव, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन थेरेपी, इम्पैक्ट, सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल ऑफ इट इज कमिंग टुगेदर। ये आज सुबह ही प्रोजेक्ट चालू हुआ, मतलब चालू से दिन पहले से आज भी गिव इट एन ऑफिशियल लॉन्च। नाउ मेरा रेसिडेंसी ज्वाइन होके थोड़े महीने ही हुए, 6 महीना भी नहीं हुआ, बट ऑलरेडी वो चालू हो गया, तो फर्स्ट ईयर में ही है। मतलब होते होते और कितना है, आज 400 डॉक्टर क्लिनिशियंस का सीख रहे हैं, बिकमिंग अ गुड क्लिनिशियन। आई कीप ऑन टेलिंग जेनम दैट मेरे को ऐसे चाहिए कि 5,000 डॉक्टर, जब तक मेरा पीजी खत्म हो 5,000 डॉक्टर्स तक हम ये पहुंचे। 5,000 डॉक्टर्स टीम में रहेंगे, अगर आगे कुछ करना भी अच्छा तो कितना कुछ कर सकते हैं सब लोग साथ में मिलकर, तो इंडिया भर के डॉक्टर साथ में मिलकर कितने कर सकते हैं। जो 30 जन स्टार्टअप स्कूल में पहले बैच में, अगले बैच में 100 का टारगेट है, हम लोग सब साथ में आके क्या क्या कर सकते हैं, इन लोग में को फाउंडर्स मिलते हैं। बहुत सारी चीज जो वही जो चेंज है वो आप ला सकते हैं। अभी हाँ, और एक कूल चीज बता, थोड़ा सा वो ब्रैगिंग हो जाएगा। मैं ना जब वो फाइनल ईयर में था ना इंटर्नशिप में, तो बिकॉज ऑफ यही बिजनेस केस है ना, मेरा एक मतलब आई वाज इन मुंबई एंड आई कुड नॉट अटेंड माय ओन कॉन्वोकेशन। तो मेरे सब फ्रेंड्स ना मेरे को बहुत सुना रहे थे, अरे वो वंस इन लाइफ टाइम। अरे मौसी थोड़ा सा आवाज कम चले, थैंक यू। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं खुद का ना कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं कर पाया था ये इस केस में। मैं सोचा यार बिजनेस करूँ या वो करूँ, मीटिंग इधर भी इंपॉर्टेंट था उधर भी था, वैसा कि नहीं यार यही करते हैं। तो मैं खुद का कॉन्वोकेशन नहीं किया, मेरे को भी बुरा लग रहा था, सब दोस्तों को बोल रहे थे यार वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होता है। बट दिस वाज इन मतलब आई गेस मेरे को ईयर याद नहीं, मेरा 2019 में हुआ रहेगा मेरा कॉन्वोकेशन। और 2 साल बाद, एग्जैक्टली 2 साल बाद, 2016 बैच का जो कॉन्वोकेशन था ना, अगर आप लोग में से कोई जीडीसी में से है तो, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई, तो उनके कॉन्वोकेशन में दे इनवाइटेड मी एज अ वो टोपी पहन के देना होता है ना सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो देयर इज अ टर्म फॉर इट, बट बेसिकली वो चीफ गेस्ट वगैरह की तरह होता है ना। So that I was giving them a lecture. I could not attend my own convocation, but I was convocating other people. तो ये सब ऐसा फिर कूल लगता है ऐसे, मतलब अभी उम्र छोटा है ना, 25-26 साल की, यही सब में मजा आता है, तो वो सही था। एंड ऐसा मेन है कि बहुत मजा आता है डेली लाइफ जीने में ना, मजा आता है, लोग अच्छे लोग से मिलते हैं। मैं जीनल को परेशान कर रहा हूँ कि मिलो मुझसे, मिलो मुझसे, मिलेंगे, वो अपना बताएगी कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं, तो ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलोगे, इंटरेस्टिंग काम होगा ये। अब अच्छा, अगर आप लोग को भी किसको करना है तो कैसे करना है, मतलब ऐसे दो चार चीजों मेरे को लगता है कि व्हाट हैज हेल्प। तो एक तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुछ भी ना बोलो कि हाँ मैं करता हूँ, मैं आपको बोलो मैं आज सुबह क्या क्या कमिट करके ना, मेरे को भी कुछ नहीं आता कि वो कैसे करना है। मैंने बोल दिया हाँ एक व्हाट्सएप मैसेज सिस्टम बनाएंगे, वो लोग हमको मिस कॉल करेंगे, सब लोग को डेली हेल्थ इन्फॉर्मेशन जाएगा और क्या क्या। मेरे को मालूम नहीं कि कैसे, अगर आप लोग में से किसको आते तो आप प्लीज मेरे को मैसेज करो। मैं अभी व्हाट्सएप स्टेटस डालने वाला, लिंक्डइन पे डालने वाला, ऐसे ऐसे मेरे को बनाना है, आप लोग में से किसको आता है आप बताओ। तो मेरे को आता नहीं, बट मैं सुबह एकदम कॉन्फिडेंस से बोल के आके हाँ मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ। पीडियाट्रिक्स भी मेरे को नहीं आ, मैं 6 महीना भी नहीं हुआ रेसिडेंसी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, 10-20 साल लगते हैं पढ़ने को। फिर मैं बोला हाँ पीडियाट्रिक का कुछ भी इशू रहेगा मेरे को, कैसा है, जो लोग पूछे खुद आए उतना खुद बताने का, बाकी सीनियर से पूछ के बताने का। तो मेन कंसेप्ट ऐसा ना, हम लोग कुछ भी सोचते हैं, हम लोग कैसे होते हैं, पहले उसमें एक्सपर्ट बनेंगे, पहले हम कुछ स्टार्ट करना है, न्यू नेट में कुछ करना है, तो फिर पहले हम लोग न्यू नेटोलॉजिस्ट बनेंगे, 12-15 साल पढ़ेंगे, और फिर होगा। मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। जब आईमेट स्कॉलर बना तब एक साइट बना था एम फॉर एम्स, वो सर का मेरे को नाम भूल गया मैं, अच्छे से सर है वो एम फॉर एम्स है ना, उनने भी तब चालू किया था यही कंसेप्ट से, बट वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट थे, वो साथ में अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, और इतना वो हो नहीं पाया। और एम फॉर एम्स के जैसी बाद में, एम फॉर एम्स का कंसेप्ट था पीजी में लोग को हेल्प करने का, सब एम्स के डॉक्टर साथ में आके किए। बट उसके बाद अजय मोहन वही है क्या, डॉक्टर जैनब के हस्बैंड, नाम है एम फॉर एम्स या एम कुछ ऐसी ही है, इसके वो न्यूरो सर्जन है एम्स में कर रहे हैं, डॉक्टर जैनब मैम के हस्बैंड। तो बेसिकली ये डॉक्टर जैनब बोला, तो फिर ना ये एम फॉर एम्स वाले लोग ये सब कर रहे थे, बट ऐसे ऊपर ऊपर से कर रहे, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बना। उसके बाद प्रेपलाइडर है, प्रेपलाइडर वाले को खुद को नहीं आता, उसका खुद का पीजी क्रैक नहीं हुआ भाई का। उसने डाला भी है कि मेरा हुआ नहीं था पीजी, आरएमओ की तरह काम कर रहा था वहां पे, उसने देखा कि कुछ लोग नर्सिंग को अब्रॉड जाने के लिए कुछ वो स्टडी का वो बनाए थे, वैसे उसने बनाना सीखा कि कैसे बनाना है, और वैसे करके उसने प्रेपलाइडर बना के अनअकैडमी को 350 करोड़ में बेच भी दी, जबकि उसको खुद का पीजी क्रैक नहीं हुआ। तो आपको ऐसा लगे ना कि, और वो एम फॉर एम्स के जो न्यूरो सर्जन बन गए, वो प्लेटफॉर्म को मतलब ऐसा मेरे को नहीं लगता ज्यादा बच्चे यूज करते, नथिंग आगे। और वो एम फॉर एम्स की एक मेंबर थी डॉक्टर जैनब बोरा, जो ये फाउंडर की वाइफ है, तो मैम अभी प्रेपलाइडर में सिखा रही, मैम भी एकदम सही है, सर को अभी आप देखोगे ना एकदम सही है, मतलब सर और मैम। बट वो लोग का पढ़ाई वगैरह में इतना समय चाहिए, अपने मेडिकल फील्ड में पढ़ाई में इतना समय जाता है कि बाकी सब चीज नहीं कर सकते। तो लोग बोलते हैं कि बैलेंस कैसे होता है, बैलेंस नहीं होता है, आई से यू वेरी ऑनेस्टली, यू हैव टू सैक्रिफाइस वन एट वन प्लेस टू गेट गुड एट। तो फिर
हाँ तो फिर वैसे उनने किया, तो फिर मेन कैसे है ना कि आप बोलो कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डू इट, मतलब ऐसा नहीं बोल के भूल जाओ, फिर सीखो कि कैसे करने का, क्या करने का, फिर वैसे वैसे बढ़ो। दूसरा स्केल एंड इम्पैक्ट, ऐसा कुछ बड़ा चीज करोगे, इम्पैक्टफुल करोगे, लोग को भी मजा आएगा, और लोग भी बोलेंगे अरे यार हमें भी जुड़ना है, आप बोलो क्या क्या कर सकते हैं। भाई मैं जब से डाले अर्बन चाइल्ड हेल्थ का, तो मेरे को एक फ्रेंड मिली है, मतलब कोई तो बातचीत हुआ था, वो अभी इन्फेंट्स को, प्रीटर्म इन्फेंट्स को मॉनिटर करने का कुछ तो डिवाइस बनाए, मेरे को ब्रोशर वगैरह भेजने वाली है वो, फिलहाल शी इज इन बैंगलोर फॉर सम कॉम्पिटिशन, तो वो सब करेंगे। तो अपने आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हो, यू गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट दैट इज व्हेन यू डू थिंग्स ऑफ स्केल एंड इम्पैक्ट। आप बोलोगे मैं क्लिनिक खोल रहा हूँ, कितने लोग साथ में जुड़ेंगे, कुछ बड़ा चीज करोगे तो ये फायदा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लो, दूसरा डू थिंग्स विद स्केल एंड इम्पैक्ट। थर्ड, आपको ना ऐसा कुछ चीज का यूनिक इनसाइट्स होना चाहिए। अब मेरा कैसा है ना, मेरा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप का, सोशल सेक्टर का, और बीइंग अ डॉक्टर। तो जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, दैट मेक्स मी वैल्यूएबल, दैट इज व्हाट आई फील। तो ऐसे लोग को हाथी देख के इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, उनको साइकिल देख के इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बट हाथी साइकिल चलाना तो इंटरेस्टिंग लगता है। I'm a very below average doctor, I'm a very below average entrepreneur, I'm a very below average social worker. तो कॉम्बिनेशन हो जाता है डॉक्टर विद सोशल वर्कर विद इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें ज्यादा लोग बचते ही नहीं है, तो उसमें यू इट इज इजी फॉर यू टू शाइन। तो ऐसे आप अपना अलग ही कुछ ऐसा कैटेगरी बनाओ, बट ऐसा बनाओ कैटेगरी जहाँ पे पैसा कमा सको। अब आप बोलोगे कि मैं नाक से नूडल्स खाता, तो उसका कुछ ऐसा कोई पैसा नहीं देगा ना। तो ऐसा आप ढूंढो कि जो लोगों को भी यूजफुल है, और उसमें करो, एंड आप उसमें यूनिक इनसाइट बनाओ। मैं फार्मा क्यों करूँ, फार्मा इसलिए जो पैरासीटामोल बेचना है, आई नो फार्मा में क्या क्या होता है, कैसे हम लोग फॉरेन जाने वाला जो क्वालिटी है ना, अपनी इधर सेम कंपनी लो क्वालिटी का ड्रग्स देते हैं। अपने को लगता है सब में पैरासीटामोल लिखा है, बट एक होता है बायो इक्विवेलेंट विच इज लोएस्ट, नहीं एक होता है केमिकल इक्विवेलेंट, बायो इक्विवेलेंट, और एक होता है वो सी CGMP सर्टिफाइड, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट ऐसे कुछ। तो वो जो होता है ना, वो ड्रग्स वो सबसे टॉप क्वालिटी का होता है, बट वो हम लोग के इंडिया में लोग बेचते हैं, वो बाहर बेचते हैं, बट वो इंडिया में बनता है, तो आप वो सस्ते में दे सकते हो। बट उसके लिए नीड टू पीपल बी ऑफ द मूवमेंट। अभी समझो कि हम लोग ग्रैंड राउंड में 4-5 हजार डॉक्टर हो गए, हम लोग ने सोचा कि यार हम लोग ये वाले हाईएस्ट क्वालिटी वाले ड्रग्स यूज करेंगे, we'll get better clinical results, we'll be able to get it at cheaper price than what companies do, because हम लोग का marketing cost वगैरह नहीं है, distribution cost will do better than that। तो उसके लिए I started investing in pharma now। मैं फार्मा बिजनेस फिलहाल उस लेवल पे कर रहा नहीं हूँ, बट इसलिए करो कि समझे तो सही स्पेस में हो रहा क्या है। और लास्ट में ना एक मशीन बनो, आप कुछ भी करके आप तो बिल्ड अ मशीन। मशीन मतलब क्या ना, कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपको आना चाहिए। मतलब कैसे कि उसेन बोल्ट कितना भी तेज भागता है, मैं ऐसा मस्त पेटू आदमी, बट मैं अगर बाइक चला रहा हूँ, आई कैन डिफीट उसेन बोल्ट इजीली, वो फास्टेस्ट वर्ल्ड का होने के बाद, क्योंकि वो मशीन का पावर। आप एक मशीन बना, मतलब कैसे, आप एक सिस्टम बनाओ जहाँ से पैसा आ रहा है, आप एक सिस्टम बनाओ जहाँ से इम्पैक्ट आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, बट अभी भी वो उधर जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है ना, वो अर्बन स्लम्स में और ट्राइबल हेल्थ में उधर चल रहा है। कैंसर फाउंडेशन, आज सुबह में इधर अर्बन स्लम का मीटिंग चल रहा था, हम लोग का कैंसर फाउंडेशन ने इधर थाने में या कल्याण में बहुत बड़ा हेल्थ कैंप वगैरह लिया। तो दैट फॉर्म ऑफ मशीन यू कैन डू। अभी अनुज मालपानी सर इधर है भी नहीं कौन, बट कैसे उनका मशीन चल रहा है ना अभी भी। वैसे बेसिकली यू हैव टू क्रिएट अ मशीन एंड यू हैव टू बी। चलो हो गया, इतना ही बोलना था। जिधर यू कैन टेक। थैंक यू। मैं मैसेज पढ़ता हूँ तब तक। Yes, please. So, first of all, thank you so much, Vishal, for giving your time and your, I would say, ekdam raw wala, experience sharing. I'm definitely, confident about it, and I can say कि जितने भी लोग यहाँ पे present है, उन सबको your message would have been reached directly to the heart. वो connect होता है यार कि we have been through this journey of, medicine पढ़ो, उसके बाद आगे क्या, कैसे, क्या क्या कर सकते हैं। सो काफी सारे मेजोरिटी ऑफ पीपल दे जस्ट डू मेडिसिन एंड देन बाद में दे आर अंडर दैट परसेप्शन कि हम डॉक्टर ही बनेंगे। बट नहीं गाइस, सिर्फ डॉक्टर के साथ साथ आप बहुत कुछ बन सकते हो। विशाल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। So thank you so much for sharing your experience. Now I would want the audience to ask any question, query, or whatever you feel like asking to Vishal. He is open for taking questions for you all. सर ना वो डॉक्टर वेंकटेश का एक मैसेज आया था, ही इज द फाउंडर ऑफ एडल। डॉक्टर वेंकटेश, आई हैव नेवर मेट यू, बट योर co-founder डॉक्टर चिन्नू सारा इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। लाइक शी इज लाइक अ सिस्टर टू मी, एंड वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो आप हम लोग विल डेफिनेटली विल कनेक्ट। आई Then लास्ट you चिन्नू can टू। unmute yourself and talk. Huh? Yeah, definitely. Actually, I got to know about this meeting via Dr. Chino. So I just thought I can listen to you, and it's very interesting to listen to your journey. So we have a lot of things in common. So we'll definitely connect over Sure, personal chat and we'll sure. Say hi to yeah, Chinnu from my side. definitely, definitely. Thank you. Okay, any questions, query, or whatever you feel like
आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते, यू कैन अनम्यूट योर माइक और यू कैन जस्ट post the questions in the chat box, whatever is suitable for you all. Okay, Vishal ji, I have a question for you. यूएनएसडी जी। अरे नहीं, वो क्या हुआ ना, आपको एक चीज से दूसरा चीज कनेक्ट होता है। मतलब हम लोग का ये सब जो काम चला ट्राइबल हेल्थ का, वो मैं डालते थे ना यहाँ वहाँ, फिर मेरे दोस्त वगैरह भी है, तो उसमें से कोई एक मेरा दोस्त था, और मेरे को मालूम नहीं, मैं तो उससे दोस्ती क्या था कि वो ग्लैनमार्क कंपनी में फार्मा में था, तो मेरे को दवाई वगैरह उन लोग का एक्सपायर होने आता 3 महीने बाद, तभी ये महीने हम लोग को दवाई बांटना है अपने इसमें, तो फिर यूज कर सकते, तो अपने को भी कुछ नुकसान नहीं, उनका यूज हो जाता है। तो ऐसे करके मेरी उससे दोस्ती हुई थी। बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि वो मिनिस्ट्री में चला गया, कैसे क्या मालूम नहीं मुझे, बट स्मार्ट बंदा है, तो वो मिनिस्ट्री में चला गया, वो बोला अरे यार तू ये सब कर रहा है, तो हम लोग वो ये काम को दिखाना है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, अपने को वो काम मिनिस्ट्री में दिखाया। तो ऐसे हम लोग ट्राइबल मिनिस्ट्री में गए। जब ट्राइबल मिनिस्ट्री में गए ना, वहाँ पे यूएन वाले भी लोग आते हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये वो ऐसा, एमपी गवर्नमेंट के लोग आते, तो वो लोग ने एमपी वाले लोग को इतना पसंद, लोग ने एमपी में वो इनेबल किया, और फिर यूएन वाले थे, तो उनसे बातचीत किया, तो यूएन की इसमें गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको एक चीज बता दूं, मैं ना बहुत जगह, मैं आज के मीटिंग में वही बोला कि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोग मतलब सेम काम ना बहुत जगह होते हैं, बट बहुत बार वो काम सही जगह तक रीच नहीं कर पाते। वो वाला प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशंस तक गया, वो सही है, बट मेरे को मैंने उससे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए जहाँ पे इम्पैक्ट आया, बट वो बहुत बार उधर तक पहुंच नहीं पाए। तो कनेक्शंस और आप काम करो वो एक चीज है, बट आपका काम सही जगह तक पहुंचना चाहिए वो दूसरा चीज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो हाफ ऑफ यू वुड बी मोर टैलेंटेड देन मी, जजन मैं अलग कैसे हो गया ना, वो लोग को मालूम है, तो वही लोग का एक बार नाम हो गया, तो वही वो डॉक्टर का भी कैसे, दवाई सब लोग वही देते हैं, बट वो एक डॉक्टर का नाम रहे, सब लोग उसी डॉक्टर के जाते हैं, सबको लगता है भाई सब इधर ही है, तो इधर ही अच्छा होगा, वैसे कर करके वो हो जाता है। कुछ और मैसेजेस आए हैं। As always, I am speechless. Thank you, यार. Can you tell me more about insight, like paid insights you give to startup? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। चलो फार्मा का बताता हूँ मैं आपको। अभी हॉस्पिटल्स है ना, तो हॉस्पिटल्स का अगर आप फार्मा डिवीजन देखोगे, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में फार्मा में बहुत टॉप पे है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बहुत सही है, अपना रिटेल वगैरह भी अच्छा है, बट अपना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब है। तो अगर आप फार्मा का डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेन वगैरह में देखो, या कोई भी इंडिया में भी एफएमसीजी का लोग है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेन 10% ही खाते हैं, कि मतलब अगर 100 रुपए है तो उसमें से 10-15 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन चेन को जाएगा। इंडियन फार्मा में 40-45 रुपए जाते हैं। उसका रीजन ये कि एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है इंडिया में, तो देयर इज नो वन कॉमन। जा रहे क्या, हो गया क्या ड्यूटी, मेरे को छोड़ के जा रहे हैं? मेरा अभी 8 बजे खत्म हो जाएगा। सॉरी, कहाँ पे था मैं? अरे वो वार्ड वो लोग बंद कर रहे हैं, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, तो Distributors. वो हाँ हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ना, यहाँ पे इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा परसेंट लेते रहते हैं, तो फिर आप उसके से भी काफी कॉस्ट जाते हैं। ये एक बात हुआ। दूसरा बात क्या हुआ, फार्मा में अगर आप कोई भी, आप लोग हॉस्पिटल में काम करते हो ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप देखोगे कितना ड्रॉप रेट है, कि अगर आप पेशेंट को 10 दवाई लिख के देते हो, मैं अपने हॉस्पिटल का ही बोलता हूँ, 10 दवाई लिख के देते हो ना, 5-6 दवाई वो अपने हॉस्पिटल से लाते हैं, 4 दवाई हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं रहते, लोग बाहर से लाते हैं, तो ड्रॉप रेट भी बहुत है। तब उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ड्रॉप रेट के स्टॉक में नहीं रहते, तो लोग कैसे महीने महीने स्टॉक भराते हैं। आप उनको, अगर आपने इंसाइट वगैरह डाला ना, मैं जब ये सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कर रहा था, मैंने फार्मा के इंसाइट्स डालू कि वो क्या रेट पे वो खत्म हो रहा है, तो एक जो 20 दिन पे खत्म हो रहा है आपका में 20 दिन में, तो 20 दिन में सोर्स हो जाएगा, 40 दिन वाला 40 दिन में सोर्स होगा। तो ऐसे कर करके आपका स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं जाएगा, और बेटर यूटिलाइजेशन होगा। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी कैसे इतना ज्यादा जा रहे हो, तो आप कम में ले सकते हो। कैसे कि मैनकाइंड का आपको दवाई चाहिए, तो मैनकाइंड का चाहिए, तो फिर आपको मैनकाइंड भी एक जगह से बनवा रहा है, एबीसी, एक सेकंड ना, तो एबीसी करके सपोज कोई कंपनी है, मतलब रैंडम नाम दे रहा हूँ मैं, वहां से बनवाते, तो आप सीधा उनसे सोर्स कर सकते हो। आप ऐसे बहुत सारे ग्रुप है हॉस्पिटल्स के, उस ग्रुप में एंटर हो सकते हो, कि हम लोग साथ में बार्गेनिंग करके वो नेगोशिएट करते हैं। जैसा फार्मा जैसे बताया कि सीजीएमपी एक होता है जो हर 2 साल में होता है, डब्ल्यूएचओ जीएमपी होता है, और एक लोकल जीएमपी होता है। लोकल जीएमपी 10 साल में उनको अपडेट करना होता है, डब्ल्यूएचओ में 5, और सीजीएमपी में, आप सीजीएमपी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी देते हैं, वो वाला अगर आप लोगे तो फिर आपका बेटर थेरेप्यूटिक ये रहेगा। फॉरेन में वही चलते हैं, बस एटलीस्ट डब्ल्यूएचओ। तो ये सब जो है ना, अभी आप फार्मा जाओगे, आपको माम नहीं, आप उधर जाके बोलोगे नहीं नहीं ऐसा करने का, ऐसे करने का, आइडिया का किसको वैल्यू नहीं, आप रियल इम्पैक्ट लो। तो अगर आपने ये सब चीज किया ना, आप लिटरली अपना 40% अगर रेवेन्यू, हॉस्पिटल अगर 4, मैं हॉस्पिटल को जानता हूँ जिनका महीने का टर्नओवर 4 करोड़ है, बस उनको फार्मा से 2 करोड़ आते हैं, मतलब 4 करोड़ हॉस्पिटल और फार्मा से 2 करोड़, टोटल 6। इतना बड़ा रेवेन्यू सोर्स है फार्मा हॉस्पिटल्स के। तो उनको अगर मैं फार्मा में हेल्प किया हॉस्पिटल्स को, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर की, तो कितना उनको बेनिफिट होगा, वो लोग देने के लिए भी रेडी रहेंगे पैसे। तो ये फार्मा का, वैसे ऐसे बहुत सारे फील्ड का अलग अलग रहता है, तो आपको सब कुछ मालूम है, कोई भी एक फील्ड का मालूम रखो, और वो जगह जगह जाके वो चीज आप बताओ। मैं ज्यादा तेरे को नहीं बताऊंगा ना, फिर तुम मेरे धंधे पे हाथ में आ जाओ।
और कौन है? अभी रूप जाल्टे, हाउ टू बी मल्टीडिसिप्लिनरी व्हेन आई नो आई एम ऑलमोस्ट लीव इट अदर। अरे नहीं होने का जरूरत है यार, मल्टीडिसिप्लिनरी मत हो, मैं मजबूरी से हूँ। मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, उसके फायदे नहीं है। आपको आगे जाना है ना, यू हैव टू बी रियली गुड एट वन थिंग। मेरा कैसे, बिकॉज मैं कोई चीज में अच्छा नहीं हूँ करके मेरे को अलग अलग चीजें करने पड़ते हैं। मतलब मेरे को कोई तो लेना पड़ता है जो इसमें अच्छा है। अभी स्टार्टअप स्कूल में हिमानी लेक्चर्स देती है, वो टेक वगैरह वो देखती है, तो उसके लिए मैं तो जो स्टार्टअप से आज भी काम करता हूँ, आई टेक केयर मोर ऑफ द बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो बिकॉज मेरे में कोई ऐसा बराबर से टैलेंट नहीं है करके मैं दूसरे लोग के पास जाता हूँ। बट आपको ऐसे करने का जो है, आप एक चीज में अच्छे हो ना, आप ढूंढो आपसे कॉम्प्लीमेंट्री नेचर वाला। जैसे मेरी जो आईमेड की को फाउंडर है, अब सब लोग को लगता है मैं अकेला फाउंडर हूँ, बिकॉज वो कहीं पे दिखती नहीं है। चीज एकदम ऐसा इंट्रोवर्ट और एकदम अपने में रहती है, तो काम ऐसा करती है। मतलब मैं तो ऐसे डील करते बोले था, हाँ ये करेंगे हम लोग, करके दे देंगे 2 दिन। वो मुझसे होता नहीं है, फिर वो रात भर बैठ के वो करती है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है। तो वो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ेंगे जिसके साथ आपका कंपैटिबिलिटी अच्छा। वो लोग मेरे साथ क्यों रहते हैं? बिकॉज मैं थोड़ा सा ऐसे, मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा खुले दिल का हूँ, थोड़ा सा दोस्ती वोस्ती अच्छे से करता हूँ, तो फिर मैं डील्स वगैरह अच्छे से कर लेता हूँ। बिकॉज आई एम वेरी वार्म एंड, मतलब आई सीक वार्म का लोग, दैट इज माई वे ऑफ फंक्शनिंग। तो वैसे हो जाता है। फिर आप वैसे लोगों के साथ करो, थोड़ा सा ओपन नहीं रहो यार, खुल के रहो। लोग कैसा होता है ना, वो स्टार्टिंग में बहुत सारे जन स्टार्टअप खोल रहे हैं, अरे हम लोग इक्विटी 2% देंगे, 5%। आपके 100% इक्विटी का भी ₹0 वैल्यू नहीं है, 2 साल में कंपनी बंद होने वाली है। तो इतना कुछ इक्विटी वगैरह के लिए लालची बनने का नहीं। जनरली 30% तू रख, 40% मैं रखूंगा, दोनों मिलकर कम। ऐसे रखोगे ना तो फिर अपने आप आपका ओवरऑल पैसा बढ़े। ये फिलहाल आपका ये दिक्कत नहीं कि आप कम कमीशन कमा रहे हो, कम पैसा कमा रहे हो, दिक्कत ये कि कमा ही नहीं रहे हो। पहले कमाना चालू करो, फिर धीरे करके आप इक्विटी भी अपना बढ़ा लेना, है ना? और कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, अरे बाबा खुद करेगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि खुद करने में बहुत टाइम लगता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐसे बात करने में वो थोड़ा सा ज्यादा ओपन या ऐसे रफ मेरे को लग रहा है। मतलब कैसे अभी हम लोग सब अपने एज के ही है ना, तो वी नीड टू हैव ऐसा ऑनेस्ट टॉक। अदरवाइज लोग कैसे ऐसे ज्ञान बांट के जाते हैं, लेकिन इट हैज टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल एंड ऐसे रियल, जो चीज वर्क करता है वैसे। That's the reason we call all the speakers like young speakers who can connect with the audience, because we know बहुत सीनियर लोग आते हैं तो यार उनका अलग जर्नी है एंड वी कैन नॉट कनेक्ट इतना इजीली। फिर लगता है यार वो हाई फंडे हो गए हैं एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर अस वाला सिचुएशन आता है। सो यंग स्पीकर्स होते हैं तो लाइक ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, अरे ये तो थोड़े साल पहले हमारे फेस से गुजरा था एंड नाउ ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग। सो या मैंने पूरा ये सब जर्नी 2020 में चालू, मतलब 19 वगैरह तक ऐसे आईमेड वगैरह था तब। बट असली में जो पैसा ऐसा सब आना चालू 2020 में आना चालू। अभी का 2 ही साल हुआ, आप लोग भी अभी करोगे 2-3 साल में आ जाएगा अच्छे से। nice. Any other questions for Vishal? Uh, I guess questions are done. So before we end this meeting, I would like to tell you all that update that last time जब हमने talk show रखा था, we were discussing about the hackathons which we were about to organize. So yes, we successfully completed that hackathon in KEM, and now upcoming hackathons ka update for others who would want to participate in the hackathons which would be coming up. So there are two hackathons lined up. I'll just share my screen first so that you guys can see the images. So first, this is Pulse 2022, that is AIMS walo ka hai. So this is the brochure. You can see that on their Instagram. सब details उन्होंने डाली है. So whoever interested can definitely apply for this hackathon. The other hackathon, जहाँ पे MICE is a part of it, so University College of Medical Sciences, Delhi, we are going to be part with them for organizing this hackathon, like we did with KEM last month. So I hope to see you guys in this hackathon as well, and we will have fun as there are participants who were in the KEM hackathon here. They know how much fun we had, so hoping to have the same level of fun here as well. And lastly, if anyone wants to contact us, so this is our contact detail. We are there on all the social medias. You can just follow us. You can drop text over there also. This is our official number and email ID. If there is any query, you can directly reach out to us. So that's it from my end अच्छा too. लेना भी, मेरे को एक क्वेश्चन है, रिकॉर्ड हो रहा था क्या सेशन? हाँ हो रहा था. I अच्छा, आप don't एडिट करके worry. डाल रहे हो या पूरा डाल That's रहे हो? what that's what I said. Don't worry about it. अच्छा अच्छा, ठीक है।
चलिए. So yeah, thanks. Okay. Okay, Bye guys. guys. Bye bye. Hope to see you all soon again with our next talk show. Till then, see you. Bye bye.